Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. As you all know kids, my subject is science. Here we are conducting the session number 3, chapter number 4, soil. We have already completed our 2 sessions of this chapter, right? Today we are going to conducting session number 3. In today's session, I am going to explain about types of soil, in that black soil and red soil. And then after, what does soil consist? मतलब soil क्या consist करती है? So in this chapter, in this session, I am going to explain you about this. But before I start today's session, I just want you to revise all the all the things about last 2 sessions. Vocabulary words, meanings and formation of soil. So let's begin that. So should I start? So kids, vocabulary words. Number 1, formation. 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 Number 2, clay. 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 Number 3, grainy. 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 Number 4, decomposition. 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 Number 5, moisture. 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 Number 6, pebbles. 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 Number 7, smooth. 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 Number 8, cotton. 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 Number 9, earthworms. 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 Number 10, beetles. 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 Number 11, mud. Mud. Number 12, minerals. 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 Number 13, snail. 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 Number 14, stone. 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 Number 15, trapped. 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 Here we completed our vocabulary words. Now let's pronunciate it once again. Number 1, formation. Formation नहीं, formation. Number 2, clay. Number 3, grainy. Number 4, decomposition. Number 5, moisture. Number 6, pebbles. Number 7, smooth. Smoother, it's smooth. Okay. Now number 8, cotton. Number 9, earthworms. Number 10, beetles. Number 11, mud. Number 12, minerals. Number 13, snail. Number 14, stone. And number 15, trapped. Now, meanings. Number 1, moisture. Very small drops water present in the air. In our air, there are so many small watery substance is present, that is moisture. हमारे एयर में वाटर जैसा सब्सटेंस आजू बाजू में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉइस्चर. मतलब हमारे मॉइस्चर में ही हम फील भी कर सकते हैं. wherever we are going to feel in winter season, even in rainy season, in summer season also. Okay. Now decomposition, the process of decaying or rotting. मतलब ऐसी process from that we decay and rotted the waste material, that is called decomposition. Number 3, fertile soil. Soil that is rich in substances needed by plants to grow. Fertile soil means the soil which is rich in everything. Whatever plants need in that soil, it consists all the things. मतलब plants को जो भी चीज़ की ज़रूरत है उस soil में वो चीज़ होती है. It means वो कौन सी soil हुई? Fertile soil. हमारे बॉडी को मिनरल्स, विटामिन्स, ये कुछ भी ज़रूरत होती है तो हमें कोई भी फ्रूट वेजिटेबल खाने से मिल जाता है.
तो क्या है कि वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सब चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो सारी की सारी फर्टाइल सॉइल में होती है। नंबर 4, ग्रेनी। ग्रेनी मतलब सैंडी पार्ट ऑफ सैंड, मतलब सैंडी वाला पार्ट होता है ना सैंड का, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट ग्रेनी। नाउ नंबर 6, ह्यूमस, a substance made from dead leaves and plants that you put into the ground to help plants to grow। मतलब ह्यूमस मतलब ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि वो ह्यूमस इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल। ह्यूमस है ना, वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से जो मिट्टी हमें मिलती है ना, तो वो बहुत ही फर्टिलिटी वाली होती है। तो उससे क्या होता है कि इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, उससे सॉइल फर्टाइल होती है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर मीनिंग्स ऑल्सो। नाउ लेट्स बिगिन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल कैसे बनती है। लास्ट सेशन में दीदी ने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया था, राइट, पिक्चर ड्रॉ किया था, याद है ना, कि नीचे बहुत सारे रॉक्स है, सन्स की हीट भी उसके ऊपर आ रही है, विंड भी उसके ऊपर ब्लो हो रहा है, रेन भी उसके ऊपर गिर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब रॉक्स के ऊपर आ रही है इन एवरी सीजन before so many years ago, right? So these kind of things happen on rocks. Then what formed? Rocks formed into small pieces of rocks and into soil. मतलब ये सारी की सारी चीज़ें रॉक्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंस वे में आ रही थी। तो छोटे छोटे रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, रॉक्स छोटे रॉक्स में, उससे छोटे रॉक्स में, फिर उसके बाद एक सॉइल में कन्वर्ट हो गए। So clear kids? Now I'm reading these things, The garden floor is made up of soil. हमारा गार्डन होता है ना हमारे आजू बाजू में, उसकी फ्लोर किससे मेड होती है, मतलब उसकी ज़मीन होती है वो टोटली सॉइल से बनी होती है, मिट्टी से बनी होती है। Let us learn more about soil and its importance. हमें सॉइल और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये फटाफट से रिवाइज करवा रही हो, अच्छे से यहीं पे आप ध्यान रखोगे, ओके। लॉन्ग अगो द सरफेस ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ ह्यूज रॉक्स, मतलब बहुत सालों पहले अर्थ पूरा का पूरा बड़े रॉक से ही कवर था। देयर इज नो एनी सॉइल, देयर इज नो स्मॉल रॉक्स, देयर इज नो क्ले, नथिंग, but it is covered with big rocks. These rocks broke down into smaller pieces over time due to the action of the sun's heat, the rain and the wind. मतलब कि ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, साल बीतते गए, पास होते गए, उससे क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीज़ें सन की हिट, विंड और रेन इसके ऊपर उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली आता ही गया, उससे रॉक्स थोड़े थोड़े वीक होना स्टार्ट हो गए। तो बड़े रॉक्स थे वो छोटे रॉक्स में आए, छोटे रॉक्स से सॉइल में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होने लगी, किसको, रॉक्स को इफ़ेक्ट होने लगी। कौन कौन सी चीज़ें, द सन्स हिट, द रेन एंड द विंड। क्लियर किड्स, दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट, हाँ, प्लीज keep it all the things in your mind, okay? Remains of dead plants and animals too got mixed with these pieces. इसके अंदर डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स भी इसके अंदर मिक्स होने लगे। कोई भी चीज़ टूट रही है, हम उसको निकाल रहे हैं, मतलब वो अपने आप ही टूट रही है, तो उसमें अपने आप ही डेड प्लांट्स और एनिमल्स उसके साथ मिक्स होते गए। तो उससे क्या बनते गए, ये जो सॉइल, उसमें जो सॉइल बन रही थी वो फर्टिलिटी वाली बनने लगी। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो होने लगे, मतलब ट्रीज़ ग्रो होने लगे तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, तो एक उसमें एयर भी आ गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। 10 over thousands of years
rocks broke down into increasingly small pieces and eventually became soil. मतलब जैसे जैसे years तो थे, बहुत सालों पहले की बात है, मतलब कि 1000 years back, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें होने लगी। तो ये जो बड़े बड़े रॉक्स थे, इतने मतलब ये तो सिर्फ एग्जांपल है, इतने रॉक्स थे वो इतने हुए, इतने रॉक्स थे इतने हुए, इतने 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 इतने, फिर उसमें से सॉइल कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो हियर वी कंप्लीटेड आवर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मैंने आपको ब्लैंक्स भेजी थी, आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज सेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल। Types of soil. Based on color, soil can be of many types. Kids, there are so many different types of soils are there. तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम उसके कलर को देख के उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि ब्लैक कलर की सॉइल है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? ब्लैक सॉइल। फिर थोड़ी रेड कलर की होती है तो रेड सॉइल। तो ऐसा देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर। बट आपको कौन सी आ रही है आपके ग्रेड में? यू आर ओनली सपोज टू नो अबाउट दीज टू सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। द टू मेन टाइप्स आर ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। मतलब हमारे पास दो मेन टाइप्स की सॉइल है, कौन कौन सी? ब्लैक सॉइल and red soil. If suppose I am going to ask you, write down two types of soil, then what you are going to write? You are supposed to write down, yes, black soil and red soil. I can ask that also. Based on blank, soil can be of many types. मतलब हम soil को किस बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो हम सॉइल को कलर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? देन व्हाट यू आर गोइंग टू फील इन दैट ब्लैंक? कलर, राइट? ओके, गुड किड्स, आ रहा है आपको? नाउ व्हाट डज सॉइल कंसिस्ट ऑफ? मतलब सॉइल क्या कंसिस्ट करती है, सॉइल क्या कंटेन करती है, उसके अंदर क्या क्या होता है? Soil consists of humus, sand and clay. Soil के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है? ह्यूमस होता है, सैंड भी होती है और क्ले भी होती है। क्या क्या होता है सॉइल के अंदर? ह्यूमस, सैंड, क्ले। ह्यूमस, सैंड, क्ले। Once more, what does soil consist? Soil consists humus, clay, sand. Humus, clay, sand. Humus, clay, sand. Okay. Now what is humus? Humus क्या है? Humus is the topmost part of the soil. सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना सॉइल का, topmost part, उसके अंदर ह्यूमस होता है। मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो ह्यूमस ही होता है। ह्यूमस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल का ऊपर का पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस। अभी ह्यूमस कैसे बना होता है? ह्यूमस है क्या? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये एनिमल्स और डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करके जो सॉइल हमें मिलती है, जो सॉइल मिलती है उससे ह्यूमस फॉर्म होता है। एंड इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। मतलब इससे सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल बनती है। क्या बनती है? फर्टाइल। अगर सॉइल में फर्टिलिटी वाली सॉइल होती है तो उसमें प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अच्छी तरह से मतलब इट ग्रोज वेरी नाइसली। मतलब उसको सारे के सारे मिनरल्स उस सॉइल में से मिल रहे हैं, अच्छी तरह से प्लांट्स वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सन्स की हीट भी मिल रही है, तो बहुत ही हेल्दी प्लांट ग्रो होगा। किड्स नाउ डिकम्पोजिट कैसे करते हैं? मतलब कोई भी हमारा फूड का वेस्ट मटेरियल होता है ना वो, और कोई भी डेड एनिमल्स होता है वो, कोई भी खाली एरिया होता है, गार्डन होता है, कोई भी ग्राउंड होता है, तो उसमें एक बड़ा सा पिट मतलब खड्डा करके उसमें वो वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं, फिर उस खड्डे को बंद कर देते हैं।
उससे क्या होता है कि हमें डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब वो जो सॉइल होती है ना उस वजह से उसमें फर्टिलिटी आ जाती है, पर उस प्रोसेस को होने में बहुत सारे ईयर्स लगते हैं। तो उससे क्या फॉर्म होता है, ह्यूमस फॉर्म होता है। क्या होता है किड्स, ह्यूमस, जो सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसमें अच्छे अच्छे प्लांट्स और अच्छी तरह से बहुत ही सब कुछ ग्रो होता है। वंस अगेन आई एम रीडिंग, लिसन इट केयरफुली। Humus is the topmost layer of the soil. It is formed by the decomposition of dead plants and animals. It makes the soil fertile, मतलब वो soil को fertile भी करते हैं. Now, clay consists of very fine particles of soil. क्ले क्या कंसिस्ट करती है, तो कि वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर के वो जो अच्छे अच्छे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कौन कंसिस्ट करता है, क्ले कंसिस्ट करती है। कौन कंसिस्ट करता है, मतलब क्ले, उस क्ले के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगेन आई एम रीडिंग, क्ले कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। नाउ लास्ट वन, सैंड। Sand is the grainy part and consists of bigger particles of soil. Sand क्या है, हम जो बोलते हैं ना वो रेती धूड़ जैसा बोलते हैं ना, तो क्या sand is the grainy part. Sand जो होता है वो एकदम grainy part होता है। What is grainy? मैंने आपको मीनिंग्स में बोला था। What is grainy? Grainy का मतलब क्या होता है, sandy part of soil, right? मतलब वो जो sandy part होता है ना सॉइल का, सैंड का, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेनी। तो सैंड इज द ग्रेनी पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ बिगर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, वो उसके अंदर बिगर पार्टिकल्स भी होते हैं सॉइल के। सो आई होप सो यू क्लियर ऑल द थिंग्स किड्स। नाउ लास्ट पॉइंट, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स पेबल्स, वाटर एंड एयर। पेबल्स आर स्मॉल एंड स्मूथ stones. Water that is trapped in the soil is called moisture. Now kids, सॉइल होती है ना, सॉइल आप कभी मिट्टी से खेले हो, सॉइल से खेले हो, उसके होम्स, उसके कोई भी डिफरेंट थिंग्स आपने बनाई है। तो इफ़ यू नोटिस, आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, तो वो सॉइल होती है ना, उसमें छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उसके अंदर सैंड होती है, क्ले के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने पेबल्स देखे, नहीं देखे? हियर आई एम शेयरिंग एन इमेज ऑफ पेबल्स। मैं यहाँ पे आपको पेबल्स की इमेज शेयर कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहे? मतलब ये जो पेबल्स होते हैं ना, वो भी सॉइल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। पेबल्स आर स्मॉल एंड स्मूथ स्टोन्स, मतलब वो छोटे छोटे और स्मूथ स्टोन्स होते हैं। आपको देखने के बाद पता चल रहा है ना कि ये आप लोगों ने देखा ही होगा, बिकॉज आप खेलते ही होंगे, राइट, सैंड से। नाउ वाटर दैट इज ट्रैप्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर, मतलब सॉइल के अंदर कोई भी वाटर ट्रैप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। अब ये सॉइल के अंदर वाटर कैसे ट्रैप होगा, कैसे ट्रैप होगा, मतलब हम कोई भी सॉइल है उसमें प्लांट ग्रो करेंगे तो डेली उसको वाटर तो देंगे ना। इफ़ यू हैव नोटिस्ड, आप लोगों ने कभी नोटिस किए, हम पानी तो डाल देते हैं तो एकदम से सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, देखा है ना आपने, मतलब वो जो ट्रैप्ड, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेती है ना सॉइल, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स किड्स। अगेन आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट पेबल्स, वाटर एंड एयर, मतलब ये जो सॉइल होती है ना, सॉइल के अंदर एयर भी होती है किड्स। आप लोगों जब क्ले में, सॉइल में पानी डालते हो तो उसमें बबल जैसा होता है, आपने कभी नोटिस किया है, नहीं किया ना, तब देख लेना, छोटे छोटे बबल्स बनते हैं जब हम पानी डालते हैं। क्यों, क्योंकि सॉइल के अंदर एयर भी होती है। क्या होता है, सॉइल के अंदर एयर भी होती है, उस वजह से अच्छी तरह से प्लांट्स ग्रो होते हैं। अगेन, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स पेबल्स, वाटर एंड एयर। सॉइल कंटेन्स पेबल्स, वाटर एंड एयर। लास्ट टाइम, सॉइल कंटेन्स पेबल्स, वाटर एंड एयर। If suppose I am going to ask you, soil contains what?
And what was your answer? What will be your answer? Water, pebbles and air. आ गया नहीं? Pebbles are small and blank stones. Small भी होते हैं और बहुत ही smooth भी होते हैं. तो क्या आएगा आंसर? Smooth. Pebbles are small and smooth stones. Water is trapped in the soil is called blank. मतलब soil वाटर जो होता है वो सॉइल के अंदर ट्रैप होता है. व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट मॉइस्चर, बिकॉज हमारे एयर में भी मॉइस्चर होता है. तो जब हम वो वाटर क्ले में मतलब सॉइल में ऐड करते हैं तो वो भी मॉइस्चर वाला हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके अंदर भी एयर होती है. तो पानी डालने से उसमें क्या आ जाएगा? मॉइस्चर आ जाएगा. मॉइस्चर आने से प्लांट्स को सब चीज़ मिल जाती है और वो सब कुछ स्टेम से अपने लेके अच्छी तरह से प्लांट ग्रो होना स्टार्ट कर देता है. So kids, I hope so you understand what does soil consist of. मतलब soil क्या consist करता है? क्या consist करता है? तो soil एक तो humus, sand और clay. कौन कौन सी चीज़ें consist करता है? Humus, sand and clay. Humus is the topmost part of the soil. वो ऊपर वाला part होता है. वो कैसे मिलता है? मतलब we get humus. बोलो बोलो कैसे मिलता है? It is formed by the decomposition of dead plants and animals. It makes the soil fertile. वो soil को fertile करता है. Clay consists of very fine particles of soil. Clay very fine particles soil के अंदर जो होते हैं वो consist करती है. Sand is the grainy part and consists of bigger particles of soil. Now, soil also contains pebbles, water and air. Pebbles are small and smooth stones, right? Pebbles are small and smooth stones. Water that is trapped in the soil is called moisture. I hope so kids, in today's session you easily understand types of soil and what the soil consists of, right? In next session what I am going to explain you? In next session I am going to explain you about uses of soil. मतलब हम soil का कैसे और क्या किस तरह से use कर सकते हैं. Okay, so till next session I am sending PDF with you. So try to answer all the blanks by your own self. भी बीच बीच में मैंने आपको blanks करके भी explain किया है, right? So till next session kids, bye.